Patient at 30 weeks with severe scoliosis on cervix, severe laparoscopic biopsy. During pregnancy, severe sclerosis has common intraepithelial lesion. You don't differ and you don't do terminate TOP just for it. The next step is colposcopic biopsy. Then basic cancer treatment is deferred until postpartum unless cancer is suspected. The handwritten note is P2 and moderate to ठीक है 30 weeks patient है severe sclerosis colposcopic biopsy करना से greater third perato with the previous stillbirth greater third perato with previous stillbirth now 18 weeks and GCT 140 the patient करना से GCT करना से GCT 140 is the screening cutoff for GTM you do GGT or OGDT FBS and FBS are used but is a diagnostic test for level 5 GTM management. No initial diagnosis history of stillbirth also makes GTM screening important. तो असाइनम में मतलब जीसीटी जीजीटी करेंगे ग्रेड ऑफ और पेराटो विद जीडीएम में 32 वीक्स ऑन इंसुलिन पेशेंट है grade of 4 perato with a GDM at 32 weeks on insulin. Pre and post prendial with sugar levels करेंगे on insulin. We monitor with pre-meal and 1 to 2 hour post meal blood sugars to adjust dose. On insulin, we monitor with pre-meal and 1 to 2 hour post meal. On insulin, we monitor with the pre and on insulin. On insulin, we monitor with pre-meal and 1 to 2 hour post-meal blood sugar to adjust doses. FBS and RBS alone not enough and HB1C only 6 to 8 weeks. It doesn't judge day to day. तो जो हमें अगर शुगर का लेवल बनाना है तो हम प्री-मील और पोस्ट-मील करेंगे ठीक है ग्रेड सेकंड पेरा 5 इन एक्टिव लेबर विद कॉर्ड प्रोलेप्स तो फर्स्ट हम क्या करेंगे फीटल हार्ट साउंड्स चेक करेंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे एंडोमेट्रियम विद वेस्ट प्रोग्नोसिस पेपिलरी सीरियस और पेपिलरी और क्लियर सेल जो है ना बहुत वर्स्ट प्रोग्नोसिस है एंडोमेट्रॉइड बेस्ट प्रोग्नोसिस है एंडोमेट्रॉइड जो है वो बेस्ट प्रोग्नोसिस है एंड एंडोमेट्रॉइड इज बेस्ट प्रोग्नोसिस एंडोमेट्रॉइड जो है बेस्ट प्रोग्नोसिस है पेपिलरी एंड सीरियस जो है वर्स्ट प्रोग्नोसिस है एंडोमेट्रॉइड बेस्ट प्रोग्नोसिस एंडोमेट्रॉइड में क्या है बेस्ट प्रोग्नोसिस है पेपिलरी एंड सीरियस क्लियर टाइप 2 एंडोमेट्राइड है बेस्ट प्रोग्नोसिस एंडोमेट्राइड में बेस्ट प्रोग्नोसिस है पेपिलरी एंड क्लियर टाइप 2 है हाई ग्रेड एग्रेसिव वर्स्ट प्रोग्नोसिस है एडिनोस्क्वामस एंड एडिनोकॉमस आर इंटरमीडिएट तो जो पेपिलरी एंड क्लियर है ना वर्स्ट है 14 ईयर ओल्ड 1 सेंटीमीटर टीयर एंड फियर हाई मेनानसाइट कैन हेल्प विद टेम्पन यूज टेम्पन यूज के साथ हेल्प कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास पेशेंट है प्रेग्नेंट लेडी विद लेग पेन कॉफ सॉल्वेंट एंड रेडिएट इन्वेस्टिगेशन का डॉपलर स्टडीज करेंगे motility in C-section versus SVD is correct by 3 times. The C-section motility is 3 to 4 times higher, 3 to 4 times higher. ठीक है motility in C-section versus 3 to 4 times. The 17-year-old with 10 centimeter mass was just indicate malignancy. Alpha fetoprotein in 17-year-old with large ovarian mass think germ cell tumor. ठीक है 17-year-old with large ovarian mass think germ cell tumor. अल्फा फीटोप्रोटीन हम देखेंगे करेक्ट ए है विद 10 सेंटीमीटर मास विच डज इंडिकेट प्रेगनेंसी अल्फा फीटोप्रोटीन and 24-year pregnant 18 weeks 5 centimeter compresses on no pain and symptoms management rescan after 4 weeks is correct a rescan after 4 weeks is correct asymptomatic adhesion mark less than 6 centimeter and second temperature URI corpus luteum or benign management is expected plus rescan in 4 to 6 weeks 26-year-old with galactoria and headache investigation MRI. Galactoria headache suspect prolactinoma pituitary adenoma first test to confirm hyperprolactinoma is serum prolactin. First test to confirm hyperprolactinoma is serum prolactin but for investigation occurs MRI with the brain. Patient with hyperemesis 8 weeks viable pregnancy is first test to help management urine ketone. हाइपरमेसिस के साथ पेशेंट है तो उसमें हम क्या करेंगे यूरिन कीटोन जो यूरिन डिपिस्टेक करेंगे करेक्ट है सही है तो समरी ऑफ आंसर है डॉपलर स्टडीज 3 डॉपलर स्टडीज करेंगे 3 times अल्फा फीटोप्रोटीन रिस्कैन आफ्टर 4 weeks MRI यूरिन कीटोन्स ठीक है मतलब आपके जो है ना लेग स्वेलिंग के साथ आती है पेन के साथ आती है तो डोपलर करेंगे और पैसिस और इसमें वर्सेस क्या है मोटिलिटी 3 टाइम है अल्फा बीटोप्रोटीन जंप सेल में रेस होता है अगर फॉर सिंपल सिस्ट है तो हम रीस्कैन करेंगे 4 weeks में अगर प्रोलेक्टिनोमा है तो हम एमआरआई करेंगे अगर हाइपरएमेसिस के साथ है तो यूरिन कीटोन्स करेंगे
Primary at 18 weeks, Rh negative and husband Rh positive. How to monitor Rh antibodies after delivery incorrect for weekly. तो ये इसमें बताया गया कि जब भी आपके RH नेगेटिव हो और RH नेगेटिव हो एंड हस्बैंड RH पॉजिटिव हो, तो हम क्या करेंगे, मदर RH नेगेटिव हस्बैंड RH पॉजिटिव, हम क्या करेंगे 4 वीकली करेंगे। अभी पेशेंट प्राइमरी है, 4 वीकली करेंगे टिल 28 वीक्स, टिल 20 उसके बाद हम 2 वीकली करेंगे टिल 36 वीक्स, देन 1 वीकली करेंगे आफ्टर डिलीवरी इज फॉर गिविंग एंटी नॉट फॉर मॉनिटरिंग इफ ऑलरेडी सेंसाइड वी डू मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग पेशेंट विद अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज इन बेबी विच इज हैविंग एसोसिएशन कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ बेबी क्या होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी उसमें, ठीक है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी। सही है। एंडोमेट्रियल थिकनेस इज मेजर्ड बाय एंडोमेट्रियल थिकनेस इज मेजर्ड बाय and sagittal plane at sagittal plane and midpoint. Patient 78 kg weight. What is ideal weight is recommended 13.2 kg. APTT therapeutic range is 1.2 to 1.5, 1.5 to 2.5. APTT therapeutic range 1.5 to 2.5. APTT therapeutic range 1.5 to 2.5. सही है। 18 years old with normal sexual characters, scan normal anatomy. Karyotype 46 है। 18 years old with normal sexual characters, scan normal anatomy. Karyotype 46 है, not menstrual yet. कंस्टिट्यूशनल डिले, हर चीज़ नॉर्मल हो तो ये कंस्टिट्यूशनल डिले है, ठीक है। मार्केज में क्या होगा, यूटस एब्सेंट होगा। CH में क्या होगा, 46 ऐसा आएगा। यूटस नहीं होगा, ब्रेस्ट प्रेजेंट होंगे। 16 ईयर्स ओल्ड प्राइमरी एमनोरिया, ब्रेस्ट नॉर्मल, स्पेयर्स बेबी एक्सरी ईयर, वजाइना ब्लाइंड, एब्सेंट मास इन इंग्वानल रीजन। ये कंजाटल एडिनल कंप्लीट एंडोजेनल सेंसिटिविटी है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, 46 SY कैरियोटाइप टेस्ट इन इंग्वानल एंड एब्डोमेन, टेस्ट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट टू एस्ट्रोजन, इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी। ठीक है, टेस्टेड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन, ब्रेस्ट डेवलप टेस्टेड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन एंड ब्रेस्ट डेवलप कन्वर्टेड इनटू टेस्टेड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नो यूट्रस बिकॉज ऑफ पेन स्पेस हेयर बिकॉज ऑफ एंडोजन सेंसिटिविटी स्पेस होंगे। हेयर स्पेस और एमआरकेच विद हेयर नॉर्मल हेयर, एमआरकेच में क्या होगा, हेयर नॉर्मल होंगे और इसमें हेयर स्पेल होंगे, ठीक है। हाँ, तो एंटी डी वाली पेशेंट है तो 4 वीकली हम करेंगे, देन 2 वीकली करेंगे, देन 1 वीकली करेंगे। कंजेनिटल हार्ट डिजीज का बच्चा है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी, ठीक है। और हम एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो रूल आउट करने के लिए सजाइटल प्लेन मिड पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, 3.2 kg डिपेंडिंग ऑन BMI और PTT जो है 1.5 to 2.5 है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है, कंडाजन एंड्रोजन सेंसिटिविटी है, ठीक है। पेशेंट कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली आफ्टर renal transplant, what to do, continue pregnancy with immunosuppression, tacrolimus is a thyroid, prednisolone, mycophenolate and are stopped preconception. TOP is not indicated if graph is stable, need protein quantification, frequent scan too, but management is continue with immunosuppression and close monitoring. तो कंटिन्यू करेंगे इम्यूनोसप्रेशन के साथ और क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। सप्रेशन एंड क्लोज मॉनिटरिंग करें, कंटिन्यू प्रेगनेंसी विद इम्यूनोसप्रेशन एंड क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। सही है। और फिर हमारे विच ड्रग टू बी गिवन टू पेशेंट इन ग्रेव डिजीज, कार्बिमाजोल, mycophenolate and MFR stopped preconception, ठीक है। Which drug to be given to patient in grave disease for better outcome, कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल देखिए, हम प्रेगनेंसी में हम कार्बिमाजोल देंगे, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर लैक्टेटिंग मदर में हम प्रोपाइल थायरोसिल देंगे। क्योंकि प्रोपाइल थायरोसिल का क्यों स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इसका जो है ना ये एक तो इसका मतलब गुड पॉइंट ये है कि ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि ये हेप्टोटॉक्सिस कराता है, हेप्टोटॉक्सिसिटी कराए, तो इसलिए इसको बंद कर देते हैं, फिर कार्बिमाजोल स्टार्ट करते हैं। बिकॉज वंस डेयरी डोजिंग लेस साइड इफेक्ट, प्रीफेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एंड थायराइड स्टोन प्रोपेनोल सिम्प्टोमेटिक है, और बहुत बेकार में यूज बट लॉन्ग टर्म एंड बेटर आउटकम है, ठीक है। कार्बिमाजोल के साथ है। प्रीफेड ओवर कार्बिमाजोल फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन बिकॉज काज फीटल एनोमली लेस फीटल एनोमली कराता है, लेस प्लासेंटल ट्रांसफर है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रोपाइल है लेस प्लासेंटल ट्रांसमेस्टर, प्रोपाइल थायरोसिल है द लेस्ट प्लासेंटल ट्रांसफर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। Low risk of congenital malformation like aplastic cutis after first time we switch to carbimazole because
can cause hepatotoxicity. Selected embracement case. Selected embracement में patient underwent IVF SOB plus severe abdominal pain, nausea after second dose of gonadotropins. What step will prevent further deterioration? Patient underwent IVF SOB severe abdominal pain and nausea after second dose of gonadotropins. What step will prevent further deterioration? Ovarian hyperstimulation syndrome. इसमें क्या होगा? टिकट बाय HCG मैनेजमेंट स्टॉप HCG ट्रिगर both hold further gonadotropins IV fluids monitor giving more HCG will worsen it. So oxygen IV fluid help, but the key preventive step both hold HCG, which will predispose most to ectopic pregnancy, tubal damage and scarring. PID PID ज्यादा है, इसको प्रीडिस्पोज करता है. पेशेंट 832 वीक गोट RTA पेन, ब्लड स्टेन लाइकर BP 160/90 एंड 120. तो ये प्लासेंटल अब्रप्शन है. ठीक है. पेशेंट विद MRKH वांट वजाइनोप्लास्टी. कॉमन कॉम्प्लिकेशन वजाइनल रिट्रैक्शन एंड स्टेनोसिस होगी. ठीक है. तो आपकी पेशेंट ये अगर रीनल ट्रांसप्लांट के साथ आए तो कंटिन्यू करेंगे इम्यून सप्रेशन के साथ का, और ग्रेव्स डिजीज में कार्बिमाजोल देंगे, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर लैक्टेशन में प्रोपाइल थायोसिल दूंगे, और फीटल एनोमली कराता है प्रोपाइल थायोसिल. ठीक है. तो इसलिए हम प्रोपाइल थायोसिल जो है ना वो कम फीटल एनोमलीज कराता है, तो इसलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं. और वहाँ प्रेग्नेंसी में हम वो होल्ड कर देंगे. बीटा HCG और एक्टोपिक प्रेगनेंसी PID की वजह से होती है, और अब्रप्शन है, BP ज़्यादा है, वजाइनल डिटेक्शन में MRKH में हम जो है ना अगर वजाइनोप्लास्टी करा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट वजाइनल रिट्रैक्शन एंड स्टेनोसिस है. TH for heavy menstrual bleeding, bladder head injury due to improper claim, but no obvious injury. Post-op catheter, it out blood stain, what to do, laparotomy and repair. Blood stain ureter after bladder injury during surgery, suspected blood perforation, fistula, even if not seen in intra-op. ठीक है. Re-exploration plus repair plus catheter 14, re-exploration repair 14 days intra, if truly minor contusion तो 7 to 14 days के लिए हम कैथेटर पास कर देंगे. THBS ऑफ सर्वाइकल CA यूरेटर मोस्ट पेरिफेरल इंजर्ड एट साइड ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट एंड कार्डिनल लिगामेंट. CA जो सर्विक्स हम सर्जरी कर रहे हैं तो जो मोस्ट कॉमन वो होगा वो ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट के पास होगा. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है यूरेटर इंजर्ड इन डिस्टल पार्ट विद एक्सटेंसिव रिवेस्कुलराइजेशन, स्टेंट प्लेस ड्यूरिंग रिपेयर. तो स्टेंट जो है ना हम 21 days के बाद रिमूव करेंगे. विच मैन्यूअर शोल्डर डिस्ट्रोशिया इज एसोसिएटेड विद न्यूरो एंड ऑर्थो कॉम्प्लिकेशन, हिप पार्ट मैन्यूअर बिकॉज रिपर्स मैक्रोबर्स मैन्यूअर सुब्रापिकुपेशियस सेफर एंड लिस्टोमा वुड स्क्रू एंड रोबिन मैन्यूअर रोटेशन मैन्यूअर मॉडरेट रिस्क में होता है. पोस्टियर आर्म डिलीवरी हाई रिस्क है. फोर्सफुल ट्रिक्शन इन हिप पार्ट मैन्यूअर रिस्क ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी सर्वाइकल ह्यूमरस फ्रैक्चर. Hibart menu जो है वो डिस्ट्रेच का. सो आंसर यूजुअली इज डी डायरेक्शन और C Hibart. If your no option Hibart is the one of the like most nerve injuries. 39-year-old 10 years infertility chronic cough AB positive sound 76 centimeter masses to KNTTB for 6 months was next ultrasound guided aspiration. This is a genital TB causing to ovarian masses after 6 months of NTT if masses persistent greater than 5 and we do ultrasound guided aspiration and biopsy. तो हम करेंगे लेप्रोटोमी एंड रिपेयर करेंगे. ठीक है. अगर हमें लग रहा है ब्रेडर इंजरी सस्पेक्ट है, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट हो सकता है. अगर सीए की ट्यूमर कर रहे हैं तो यूरिटर कहाँ पे डैमेज होगा? ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट के पास. 21 days पे रिमूव कर देंगे. हम मोस्ट फोर्सफुल इंजरी करा सकता है वो है बार डे. और फिर ट्यूबर में एब्सेस बन गया है तो हम चूंकि ट्यूबरकुलोसिस में एब्सेस बन गया है तो हम फिर जो है ना अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन करेंगे.